Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you all? Hope you all are very fine. Welcome to our channel Study with Entertainment. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आज मेरे साथ दो नए मेहमान हैं, महक और सृष्टि। तो सबसे पहले आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगा, कैसे हैं आप दोनों? सृष्टि, हाउ आर यू? I am fine, Krishna. What about you? आई एम ऑल्सो फाइन। एंड हाउ आर यू महक? Hello, I'm doing well, thank you. What about you? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं सृष्टि और महक के बीच हुई बातचीत। Okay, Mahak, my first question is that how many difficulties you face in your normal school while studying? Oh, yes, that's an interesting question. I have faced many difficulties while studying in a normal school. I would like to tell you that normal people consider blinds as a burden on earth, as neither they want to sit with us, nor they want to talk to us or share any of their thing with us. There's a myth against them that we blinds are inferior because just because we cannot see. And this is what disappoints me a lot. Yeah, I am totally agree with you. तो जैसा कि सृष्टि ने महक से पूछा कि जो ब्लाइंड होते हैं, ब्लाइंड लोग होते हैं, वो नॉर्मल स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं बचपन में और 12th तक पढ़ते हैं, क्योंकि 12th तक का स्कूल होता है, तो वो लोग क्या क्या फेस करते हैं नॉर्मल स्कूल्स में। तो महक ने बताया कि नॉर्मल स्कूल में वो पढ़ती हैं, तो नॉर्मल स्कूल में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। कोई उनसे बात नहीं करता, कोई उनकी मदद नहीं करता और किसी काम में लोग हेल्प नहीं करते, बल्कि जो ब्लाइंड लोग हैं उनको जो नॉर्मल लोग हैं वो बोझ समझते हैं एक तरह का, ऐसा महक ने बताया। और जो कि महक को काफ़ी डिसअपॉइंट करता है। Okay, so Mahak, my second question is that do you have any friend who help you out in your studies and in any condition where you face difficulty? See, I consider everyone as my friend, but it's their choice. It depends upon them whether they consider me as a friend or not. Like if I talk about help from them, no, they did not help me. And secondly, I really feel as if I should help myself. I should not wait for them. And whenever I try to take help from them, like in mobility, they make certain or the other excuse, like I have to go somewhere else, I have some or the other work. And whenever I try to go by myself, I always hurt myself. Yeah, it's so sad to hear. तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन सृष्टि ने महक से पूछा कि क्या नॉर्मल स्कूल में आपका कोई दोस्त आपकी मदद करता है? तो महक ने बताया कि नहीं, नॉर्मल स्कूल में कोई उनकी मदद नहीं करता। हालांकि वो सभी को अपना फ्रेंड कंसिडर करती हैं, लेकिन हाँ, ये नॉर्मल लोगों के ऊपर है कि वो लोग महक को अपना फ्रेंड कंसिडर करते हैं या नहीं। ऑल्दो वो लोग ब्लाइंड लोगों की वैसे भी इतनी मदद नहीं करते और उन्हें अगर कहीं जाना होता है तो उनकी हेल्प नहीं करते, और जब वो लोग खुद कहीं आने जाने की कोशिश करते हैं तो अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं ब्लाइंड लोग, और ऐसा ही महक के साथ भी हुआ। तो नॉर्मल लोगों को ये समझना चाहिए और ब्लाइंड लोगों की हेल्प करनी चाहिए। Okay,
Mehak, as you told me that you don't have such a type of friend who help you out and understand you, okay? So you let me know that your teachers also treat you like same. I mean, they also didn't support you or didn't help you out and behave like your friends or something else. Please explain me. Oh, yes, sure. You must have heard the phrase, we should not judge a book by its cover. It's just the same. My teachers have always supported me. They have always considered me as their own daughter. They have always motivated me to move forward in life. Yeah, absolutely right. अब अगला क्वेश्चन सृष्टि ने महक से ये किया कि क्या जो नॉर्मल स्कूल में जहाँ पे आप पढ़ती हो, क्या वहाँ के टीचर सपोर्टेबल हैं या फिर वो भी वहाँ के बच्चों के जैसा बिहेव करते हैं जैसा नॉर्मल स्कूल के बच्चे करते हैं? तो महक ने बताया नहीं, जो टीचर्स हैं वो काफ़ी सपोर्टेबल हैं, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी तरीके का भेदभाव नहीं करते, ना नॉर्मल स्टूडेंट्स में ना ब्लाइंड स्टूडेंट्स में, और इसलिए महक की वो काफ़ी हेल्प करते हैं और काफ़ी मोटिवेट करते हैं। और नॉर्मल लोगों को भी ये समझना चाहिए क्योंकि जो ब्लाइंड लोग हैं वो भी उनसे कम नहीं है, बस उनके पास आंखें नहीं है वरना सब कुछ है, इसलिए उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। स्कूल में आराम से सबके साथ एक साथ ही रहना चाहिए। Okay, Mahak. My next question is I would like to ask you that has your condition improved in present as compared to the past? If I talk about the present condition, no, it hasn't improved perfectly, but there is something better because I do not give that much importance as I used to give during the past. I always devote some time to my studies while sitting idle. Either I learn any of the subject or I complete my assignment. So because I have believed and stopped expecting from my friends, I have made myself believe that no one will help me, no one will come and help me, I will have to help myself. Yeah, absolutely. I am totally agree with you. तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि सृष्टि ने महक से किया कि क्या उनका एक्सपीरियंस जो बचपन में था नॉर्मल लोगों के साथ, क्या वो अभी थोड़ा सा उसमें बेहतरी आई है या फिर पहले जैसी ही है? तो महक ने बताया कि हाँ, अभी थोड़ी बेहतरी आई है लेकिन उतनी अच्छे से नहीं। अगर वो अपने पास्ट के हिसाब से देखें तो पास्ट में ये चीज़ें ज़्यादा होती थी, हालांकि अब थोड़ी इम्प्रूव हुई हैं और हाँ असल में हुई हैं, लेकिन अभी भी जो लोग हैं उनको समझने की ज़रूरत है क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि ऐसा स्कूल्स में होता है। और महक ने ये भी बताया कि जब उन्हें कोई असाइनमेंट या फिर कोई काम करना होता है तो वो अकेले बैठ के काम करती हैं क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया है कि उनकी हेल्प करने कोई आने वाला नहीं है। बहुत कम टाइम में ऐसा होता है कि जब कोई हेल्प करने आता है, इसलिए महक खुद इंडिपेंडेंट बन चुकी हैं ताकि अपनी मदद खुद करें, और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती हैं तो टीचर से पूछ लेते हैं, लेकिन हाँ इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती वो किसी को, क्योंकि जो जैसा लोग उनके साथ करते हैं वैसा ही फिर उनको भी करना चाहिए, ये कोई गलत है नहीं। Okay. So, Mahak, my final question is that what message do you want to give to the normal and to the VI people? That's an interesting question. It's an indeed pleasure for me to answer this. My message for the normal people is that
Stop treating the blinds as inferior. We have not become blinds by our choice. It can happen with anyone. Anyone can lose your eyesight because of any accident or any unusual event. Treat them as humans. Stop treating them as a burden on earth. And my message for the blinds is that start being independent, because no one will come and help you. You will have to help yourself only, and stop cursing yourself because you have not become like this with your own choice. That's it. Wow, amazing. तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो कि सृष्टि ने महक से किया वो ये कि वो महक नॉर्मल लोगों को और ब्लाइंड लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं। तो महक ने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया। उन्होंने बोला कि वो नॉर्मल लोगों को ये मैसेज देना चाहती हैं कि जो ब्लाइंड होते हैं वो भगवान के घर से ही ब्लाइंड होके आते हैं या फिर वो किसी घटनावश ब्लाइंड हो जाते हैं। इसमें ब्लाइंड लोगों की गलती नहीं होती कि वो ब्लाइंड हो गए, इसमें उनका कोई कसूर नहीं होता। इसलिए जो नॉर्मल लोग जो भी ऐसा सोचते हैं वो सोचना बंद करें और सभी को समान मानते हुए उनके साथ भी समानता का व्यवहार करें, ताकि ब्लाइंड लोगों में और नॉर्मल लोगों में इक्वालिटी, समानता जो है वो बनी रहे। और ब्लाइंड लोगों को ये मैसेज दिया कि ब्लाइंड लोग सबसे पहले अपने आप को कोसना बंद करें, क्योंकि उनकी इसमें कोई गलती नहीं है कि वो ब्लाइंड हैं, और प्लस वो भगवान के घर से ब्लाइंड जन्म लेते हैं। इसलिए वो अपने आप को कोसना बंद करें, अपनी मदद खुद करें, क्योंकि कोई मदद करने आता नहीं है। इसलिए अपनी मदद करेंगे तो अपना ही फायदा है। लास्ट में इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। और हम इंसान हैं तो हमारे अंदर जितने मतलब चाहे हम किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से, कहीं से भी हैं, या फिर हम ब्लाइंड हैं या नॉर्मल हैं, ब्लड एक है, हाथ पैर वही हैं, सेम है, 2 हाथ 2 पैर 1 नाक मुंह। इसलिए प्लीज़ आप लोग ये जो भेदभाव है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको करना बंद कीजिए और समानता का व्यवहार कीजिए। यही मेरी आपसे विनती है और यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो इसी के साथ हम इस कन्वर्सेशन को ख़त्म करते हैं और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Krishna and Mahak. I would like to say something that I really feel satisfied and really happy to conversate with you with such a beautiful topic. And thank you so much, and nice to conversate with you. Take care. Bye. Yes, it was indeed a great opportunity for me as well. I really felt nice while giving answers to your questions. Your questions were very interesting, and I felt as if I have a capability to spread a message amongst the masses to stop the discrimination. Thank you so much. Thank you very much, everyone, for listening our video. If you like our video, please subscribe our channel and like and do comment if you like this video, and do share with your friends also. Thank you so much for watching.